So let's start today's session. So we'll start from where we actually left in the last lecture. So in the last lecture, we were discussing that we can view each document as a vector. So each document as a vector. Now, how to represent each document as a vector? Because and number of dimensions of each document. So number of dimension depends upon the number of words in our vocabulary. So if we have English vocabulary, let's say we are using a dictionary having 7.5 lakh words. So then number of dimensions are equal to these words in our vocabulary. Obviously, in your document, you may be having only, let's say, 1,000 words. So out of these 7.5 lakh which are in your vocabulary, only thousands are in your document. So it means that for each dimension, whether that exists particular word or not, and how many times that exists, accordingly we will represent that document as a vector. For example, the first word, if it exists, then how many times it exists? Let's say it exists 20 times, then 20 W1 plus word 2. If it doesn't exist, then 0 times. Word 3, if it exists, let's say 7 times. Word 4, if it exists, or if it doesn't exist, then 0, so on. So each document can be represented as a vector. In last lecture, then we thought that okay, we will find the similarity using these vectors, similarity among these vectors. And then we do this we also did in the last lecture, a thought experiment. Let's say you have a document D, and using the same content of this, you created another document D dash, just by copying the same thing twice. So semantically both documents are same, their distance should be very less. But if I use a Euclidean distance, then it could be very large, because where 20 W1 comes, in second document it would be 40 W1, where 7 W3 it is 14 W3, because everything is doubled. So that's why Euclidean distance is not a good measure. So we will use the angles. So that's what we decided in the last lecture, that we will use the angles between the vectors, and that will be used to define the similarity. So एंगल के लिए हमें क्या लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, कैसे निकालेंगे एंगल? Yes, anyone? डॉट प्रोडक्ट थी सर, दो वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, सो जैसे स्लाइड पे लिखा भी हुआ है, सो अगर मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सो ए और बी इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज ए बी कोस थीटा। और अगर मुझे कोस थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, देन ए वेक्टर जो भी है एंड बी वेक्टर। अब ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ए का, और ये बी का मैग्नीट्यूड है। सो देन वी विल गेट ए थीटा। थीटा को फिर हम कोस इनवर्स करके भी निकाल सकते हैं इफ यू वांट। सो ये सारी टर्म यहाँ पे आ जाएगी इफ यू वांट, बट अगर हम सिर्फ कोस थीटा के साथ भी चल सकते हैं। कोस थीटा हमें पता है कि वी नो दैट इट मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है 0 से 180। 0 के लिए कोस थीटा cos 0 is 1 and it decreases to 0. So that we can use to define similarity between the two vectors. So this is the way cos theta works. So 0 के लिए 1 है, then it decreases till 180 पे। 180 पे ये minimum होता है, then it monotonically increases. So that's why computing cosine could be one vector. अब हमें किसी भी वेक्टर का अगर उसका हमें L2 नॉर्म क्या होता है, उसका हमें
मैग्नीट्यूड चाहिए। सपोज वेक्टर है x1 x2, तो मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। सो ये होता है L2 नॉर्म से। सो दिस इज कॉल्ड L2 नॉर्म। अगर हम नॉर्मल इस वे से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो जब भी अगर हम किसी वेक्टर को, जैसे अगर x वेक्टर है, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी, अगर लेंथ को ही उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो लेंथ हो जाएगी 1। सो लेंथ विल बी 1, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, अगर हम उसी को डिवाइड करते हैं। सो अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स को करेंगे, ईच वेक्टर को उसके L2 नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो सभी वेक्टर का लेंथ यूनिट हो जाएगी, यूनिट मतलब 1 हो जाएगी, सबकी लेंथ 1 हो जाएगी, सिर्फ उनकी डायरेक्शन होगी। ओनली देन वी आर कंपेयरिंग द डायरेक्शंस, वी आर नॉट बोदरिंग अबाउट द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। उससे एडवांटेज क्या होगा, अगर कोई एक डॉक्यूमेंट बड़ा है या छोटा है, स्टिल वी कैन कंपेयर। लाइक डी एंड डी डैश, वी हैव सेड कि डी क्या है, डी से डी डैश बना है, डी डैश क्या है, डी को ही 2 बार कॉपी कर दिया तो हमारा डी डैश बना। अब लेंथ डी डैश की डबल है, बट दे शुड कम सेम। अगर हम ऐसा करते हैं तो लेंथ तो वैसे ही हमने 1 मान ली है, नॉर्मलाइज कर दिया लेंथ को, तो सिर्फ हम एंगल देख रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग एट द एंगल, तो इससे हमारी लेंथ नॉर्मलाइजेशन तो अपने आप ही हो जाती है। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स नाउ हैव द कंपेरेबल वेट्स, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द एंगल। सो अब डॉक्यूमेंट बड़ा है या छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डॉक्यूमेंट एक लेंथ सेम है। जब लेंथ सेम है तो यानी कि रेडियस सभी डॉक्यूमेंट की यूनिट है, तो हमारा सारे डॉक्यूमेंट एक हाइपरस्फीयर में आ रहे हैं। हाइपरस्फीयर की डिमेंशन कितनी है, जितनी डिमेंशन हमारे डॉक्यूमेंट की पॉसिबल है, पॉसिबल कितनी है, जितनी हमारी वोकैबुलरी में, अगर जितने वर्ड्स वोकैबुलरी में उतनी डिमेंशन पॉसिबल है। सो कोसाइन सिमिलरिटी अगर मुझे क्वेरी और डॉक्यूमेंट की निकालनी है, सो डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय द देयर मैग्नीट्यूड्स, जहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट दिस। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ क्वेरी, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे और क्वेरी का भी निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। यूनिट वेक्टर हमें पता है कि L2 नॉर्म से क्वेरी कैसे निकलता है और डॉक्यूमेंट का भी ऐसे निकलेगा। सो दिस इज बाय L2 नॉर्म। एंड अब ऊपर जो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्वेरी की पहली टर्म और डॉक्यूमेंट की पहली टर्म, और ये टर्म्स कितनी, जितनी वोकैबुलरी है, जितनी डिमेंशंस हैं। अगर डिमेंशन हमारी 7 लाख है तो उतनी, पहली टर्म उसकी और दूसरी उसकी, फिर पहली उसकी और पहली डॉक्यूमेंट की, दूसरी क्वेरी की, दूसरी डॉक्यूमेंट की, तीसरी क्वेरी की, तीसरी डॉक्यूमेंट की। इन दिस वे वी विल डू इट। और इसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे लिखा था कि W1 में साथ में 20 की 20 बार W1 आ रहा है। सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं या TF IDF वेट भी रख सकते हैं। एज वी हैव सीन कि TF IDF वेट इज बेटर, सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी रखने की बजाय हम यहाँ पे TF IDF वेट रखेंगे, एंड सेम फॉर द डॉक्यूमेंट। In this way we will find the cosine of angle between the query and the document to check the similarity. ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सिमरन, अंचल, सृष्टि? कोई डाउट हो तो बताओ। हरकिरण, दीक्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे कोसाइन निकालना है? यस सर। सो कोसाइन जब भी हमें निकालना है, हमें लेंथ नॉर्मलाइज, यानी कि हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि लेंथ नॉर्मलाइज है। सो यानी कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो करने की जरूरत नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि वो पहले से डिवाइडेड है, तो हर वेक्टर पहले से यूनिट लेंथ का ही है, वो पहले से करके रखा हुआ है। तो नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि जो पिछली में था, यानी कि ये चीज ये हमने करके रखी हुई है,
तो इसलिए सिंपल हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, क्यू एंड डी एज लेंथ नॉर्मलाइज पहले से करके रखे हुए हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर कई बार ओमिट भी कर देते हैं इसमें। अब अगर हम ऐसे क्वेरी को कंपेयर करें डॉक्यूमेंट D1, D2 एंड D3 से, जिसमें एंगल कम होगा उतना उसकी वैल्यू उतना वो पास होगा, जितना एंगल कम है। एंगल लेस मींस मोर सिमिलर, सिमिलैरिटी कितनी, एंगल लेस मतलब सिमिलैरिटी मोर। बट कोस के केस में क्या होता है, एंगल लेस मीन कोस एंगल की वैल्यू, यानी एंगल थीटा अगर लेस है तो सिमिलैरिटी ज्यादा है, बट कोस थीटा भी क्या होगा, ज्यादा होता है, कोस उसके उल्टा चलता है, यानी अगर एंगल लेस है कोस थीटा ज्यादा है तो सिमिलैरिटी भी ज्यादा है, तो हम सीधा ही कोसाइन से कंपेयर कर लेंगे, जितना कोसाइन ज्यादा है उतनी सिमिलैरिटी ज्यादा है, so that's why कोसाइन सिमिलैरिटी, जितनी कोस की वैल्यू ज्यादा है उतनी सिमिलैरिटी ज्यादा है। ये क्लियर है सबको? तो शैल वी टेक एग्जांपल, ये साथ साथ हम एग्जांपल करते हैं। सो सपोज हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है, सो 3 नॉवल है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड विदरिंग हाइट्स। ठीक है, इसमें लेट्स से हमारी डिक्शनरी में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली 4 टर्म्स आर देयर, तो यानी कि हमारे वेक्टर की लेंथ भी 4 है। सो पहले में ये लेट्स से अगर हम फॉर इजी हम टीएफ, वैसे यहाँ पे टीएफ आईडीएफ आना चाहिए, लेट्स से टर्म फ्रीक्वेंसी के साथ चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि टीएफ आईडीएफ वेट इज बेटर ऑप्शन, जो हमने पहले डिस्कस किया था। लेट्स से हम टर्म फ्रीक्वेंसी के साथ चलते हैं। सो अफेक्शन इसमें 150 टाइम आ रहा है, जेलस 10 टाइम आ रहा है, गॉसिप 2 टाइम आ रहा है, सो वुदरिंग 0 टाइम आ रहा है। तो ये इस सेंस एंड सेंसिबिलिटी का वेक्टर है। सो इसका वेक्टर अगर इनको हम टर्म T1, T2, T3 और T4 कहें तो इसका वेक्टर कैसे बन जाएगा, 115 T1 प्लस 10 T2 प्लस 2 T3 एंड 0 T4। ऐसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का वेक्टर बन जाएगा, ऐसे विदरिंग हाइट का वेक्टर बन जाएगा। लेट्स से दिस इज एक्चुअल गिवन टू अस। अब इनकी आपस में सिमिलैरिटी निकालते हैं, द सेम वे द कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे निकालनी है। अब पहले तो हम 1 प्लस लॉग ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी, जो भी टर्म फ्रीक्वेंसी है वी नो दैट कि उसका लॉग निकालना है। सो ये 3 डॉक्यूमेंट है, अफेक्शन 1 प्लस लॉग, अब पीछे जो वैल्यू थी 115 उसका लॉग निकाल रहे हैं, सो 3.06 जो भी वैल्यू थी पीछे टर्म फ्रीक्वेंसी की 1 प्लस लॉग टीएफ 2 आ जाएगा, एंड जो भी यहाँ वैल्यू थी 1 प्लस जो भी टर्म फ्रीक्वेंसी की उसका निकालें। सो पहला स्टेप है लॉग फ्रीक्वेंसी वेटिंग, और देन आफ्टर लेंथ नॉर्मलाइजेशन। अब लेंथ नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, सो लेंथ इसकी कैसे है, इसकी लेंथ 3.06 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये समथिंग 9 समथिंग होगा प्लस ये 4 समथिंग होगा, तो ये 4 ही होगा, ये 1.69 होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 15 के करीब हो जाएगा ये सम करने के बाद, तो ये 3.8 के करीब आ जाएगा इसका, क्योंकि 16 का 4 होता है तो 15 का 3.8, यानी इस सबको 3.8 से डिवाइड कर देंगे, 3.8 3.9 जो भी वैल्यू आएगी, आप साथ साथ कैलकुलेटर का भी कर सकते हो। तो हर किसी को सेंस एंड सेंसिबिलिटी का यूनिट वेक्टर निकाला, ऐसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का निकाला, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2.76 का स्क्वायर प्लस 1.85 का स्क्वायर रूट, और जो वैल्यू आएगी उसी से सबको डिवाइड कर देंगे, तो लेंथ नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी था, हमने ये निकाला था, उसके बाद हमने ये वैल्यूज निकाली है, वी हैव नॉर्मलाइज्ड दिस थिंग, नाउ ईच इज द लेंथ नॉर्मलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम सिमिलैरिटी निकालते हैं। सपोज सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस दो की निकालते हैं, तो दोनों की पहली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 0.789 इंटू 0.833, फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरी ये 0 हो जाएगा, चौथी भी 0 हो जाएगा।
सो पहली टर्म को आपस में ऐड करके फिर दूसरी टर्म को, फिर तीसरी टर्म को, फिर चौथी टर्म को. सो दिस गिव्स यू ए वैल्यू दैट इज द कोसाइन थीटा, दैट इज द कोसाइन सिमिलरिटी. ऐसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी और विदरिंग हाइट्स का करेंगे. पहले 0.789 को 0.52 से, फिर 0.51 को 0.46 से, फिर 0.35 को 0.40 से, फिर 0 को इससे, और वो वैल्यू आएगी, वो एक कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ SAS एंड वुदरिंग हाइट्स. ऐसे ही तीसरे का भी, जिसका कोसाइन सिमिलरिटी ज्यादा है वो उतना सिमिलर डॉक्यूमेंट है. सो जिसकी जितनी सिमिलरिटी है वो उतना है. सो यानी कि sense and sensibility and pride and prejudice are more similar to each other as compared to other documents. ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट हो किसी को कुछ? सो कोसाइन सिमिलरिटी से ही ये सारा आगे जितने भी आप एनएलपी में काम करोगे, यू विल सी दैट कि एज ए वेक्टर ही देखा जाता है. सो यू विल सी दैट इन सभी लाइब्रेरी में वर्ड टू वेक्टर करके, सो देयर इज ऑलरेडी ए library function which helps you to convert into vector. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें एग्जांपल में आप ये ऊपर देख रहे होगे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में आपको समझाता हूँ. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. लेट्स से मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें ये वर्ड है कार इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, और क्वेरी है बेस्ट कार इंश्योरेंस. सो नाउ लेट्स कंपेयर दिस. इनको कंपेयर करना कैसे है? पहले क्वेरी के केस में लेट्स से हमारे पास जो वोकैबुलरी है दैट इज ऑटो, बेस्ट, कार, इंश्योरेंस. सो दिस इज द वोकैबुलरी. सो अब क्वेरी में ऑटो कितनी बार आ रहा है? इट इज कमिंग 0 टाइम्स. बेस्ट इज कमिंग 1 टाइम, कार इज कमिंग 1 टाइम, इंश्योरेंस इज कमिंग 1 टाइम. सो पहले टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर टर्म फ्रीक्वेंसी का वेट. सो दैट यू हैव टू फाइंड 1 प्लस log TF. टर्म फ्रीक्वेंसी का वेट निकालना आपने. डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी. डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होनी चाहिए भी कितने डॉक्यूमेंट में आता है ये. ऑटो कितने डॉक्यूमेंट में आता है, सो दैट यू वांट टू नो. बेस्ट कितने डॉक्यूमेंट में आता है, कार कितने डॉक्यूमेंट में आता है, इंश्योरेंस कितने डॉक्यूमेंट में आता है. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. और IDF हमने कैसे डिसाइड किया था? N by DF का log. ठीक है, सो दैट इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड. अब सपोज अगर इस केस में मैं आपको डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और IDF देता हूं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कर सकते हो साथ साथ? अगर आपको DF और IDF गिवन है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? ठीक है, वो फार्मूला हमें पता है, क्योंकि ये पता है इसका एंटी लॉग लेके देन यू कैन मल्टीप्लाई विद द DF, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे. बट एक्चुअली आपको कलेक्शन पता होगी, जब आप कर रहे होगे यू नो द वैल्यू ऑफ n. सो आपको n की वैल्यू पता, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू कैलकुलेट IDF. सो IDF कैलकुलेट हो गया, वहीं से हमने TF IDF कैलकुलेट करना है. सो TF IDF व्हेन यू मल्टीप्लाई TF और IDF, 2.3 into 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1.3 into 1 ये वो हो जाएगा, और इस तरह से आप TF IDF निकाल लोगे. नॉर्मलाइज कैसे करना है? अब ये जो वेट्स हैं इसका L2 नॉर्म क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर रूट आएगा उसको डिवाइड कर दो सबसे. सो दैट कम्स आउट टू बी 3.83, और सो दिस कम्स आउट टू बी 3.83, और अब सबको इससे डिवाइड कर दो तो नॉर्मलाइज हो जाएगा. सो क्वेरी को आपने नॉर्मलाइज कर लिया. क्वेरी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दीज वैल्यूज कम्स फॉर ईच टर्म्स. ठीक है, अब ज्यादातर जो लाइब्रेरीज हैं वो आपको क्वेरी से इस स्टेट में सीधा ले आती है. जो वर्ड टू वेक्टर आप देखोगे ज्यादातर लाइब्रेरीज में है. इवन जितनी भी NLP की लाइब्रेरीज हैं, they take you directly to this and they have different way to doing it. So TF IDF is one way of doing it. जैसे हमने किया कि टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर 1 प्लस log TF करके निकाला, फिर IDF निकाला, फिर TF IDF निकाला, फिर उसको नॉर्मलाइज करके we reach here. Same we can do for document. डॉक्यूमेंट के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे.
टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर वेट निकालना, नॉर्मलाइज किया एंड देन वी डिड इट। अब हमने सिमिलैरिटी देखनी है तो सेम वे करेंगे। पहली टर्म को जैसे डॉक्यूमेंट के केस में भी हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी 1.92 वेट लेने के बाद, एंड डॉक्यूमेंट। अब हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 एंड दिस नॉर्मलाइज होने के बाद 0.52, ये 0 भी आ जाएगा। 0.34 इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा। 0.52 इंटू 0.52, 0.27 आ जाएगा। 0.78 इंटू 0.68, ये 0.53 आ जाएगा। सो क्वेरी और डॉक्यूमेंट का जब हम निकालेंगे वेट, सो इट कम्स आउट टू बी 0.8। तो कोसाइन सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू कम्स आउट टू बी डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी की जो कोसाइन सिमिलरिटी दैट कम्स आउट टू बी 0.8। नाउ एक्चुअल जब आप किसी भी वोकैबुलरी में काम करोगे, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। ये डिमेंशन जैसे इसमें मैंने 4 लिखी हैं, so ये डिपेंड करेंगी कि आपकी वोकैबुलरी का साइज कितना है। जैसे अगर आप गूगल का ग्लव मॉडल आता है, सो वेयर यू विल, आपको नेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें वोकैबुलरी का साइज इट इज यूजुअली इन मिलियंस, कि 3.6 मिलियंस, 6.8 मिलियंस, सो इतना इतना बड़ा होता है। ये विकिपीडिया से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। सो दोज मेनी वर्ड्स आर देयर, इवन उसमें इंग्लिश के, हिंदी के, बाकी लैंग्वेज के वर्ड भी हैं, और कई नाउन्स हैं, कई ऐसे वर्ड्स भी हैं, नाउन्स हैं विच आर नॉट इन द डिक्शनरी बट दीज आर देयर। एंड इवन बिलियन टोकन्स की भी डिक्शनरीज होती है, यानी आपकी डिक्शनरी का ये वेक्टर का साइज तो इतना बड़ा होगा। सो क्वेरी में जो ये वेक्टर होगा ज्यादातर तो स्पार्स रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेरीज में तो 3-4 टर्म्स हैं। इवन डॉक्यूमेंट के केस में भी, डॉक्यूमेंट में भी अगर 2000 वर्ड है, स्टिल कंपेयरिंग टू वोकैबुलरी दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी स्पार्स, ये स्पार्स वेक्टर्स रहेंगे। बट सबके लिए ये वैल्यूज निकालना, दिस इज, ये आपको निकालनी पड़ेगी। सो इन दिस वे आपको क्वेरी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट को भी करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन इजीली हैव द कोसाइन स्कोर, कोसाइन सिमिलरिटी उनका निकाल सकते हो आप। सो दैट इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस। और काफी एनएलपी में दिस इज द बेस ऑफ डूइंग द थिंग्स, काफी जगह पे सिमिलरिटी ऐसे निकाली जाती है। सो आपको जैसे इसी एग्जांपल में आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और आईडीएफ दिया है एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड द कलेक्शन, ऐसी आपको वैल्यू निकालनी आ सकती है। अब इसी का अगर हमने एल्गोरिथम लिखना है, जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था, इसी का एल्गोरिथम लिख रहे हैं। सो whatever we have done here, same we will put into in the algorithm form. तो फाइनल हमें जो पिछली स्लाइड में, आई एम गोइंग बैक एंड कमिंग टू दिस स्लाइड अगेन अगेन, हमें फाइनल क्या चाहिए, ये स्कोर चाहिए, ये फ्लोटिंग पॉइंट में होगी। ऑब्वियसली हम इनिशियलाइज करेंगे ये, सो फाइनल जो स्कोर होगी ये इनिशियलाइज करके दिस इज गोइंग टू बी फ्लोटिंग पॉइंट, और लेंथ भी नॉर्मलाइज करेंगे, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट में होगा। अब हर टर्म के लिए, हर क्वेरी टर्म के लिए, हर टर्म के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट उसका वेट एंड फेच पोस्टिंग फॉर टी। फिर हमने हर टर्म के लिए जो भी क्वेरी के पार्ट है, जैसे पहली टर्म थी ऑटो, सो ऑटो के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे, यानी लूप लगेगी ऑटो के लिए, हर क्वेरी की टर्म के लिए लूप चलेगी। सो पहली बार ऑटो के लिए चलेगी, फिर बेस्ट के लिए चलेगी, फिर कार के लिए चलेगी, इंश्योरेंस के लिए चलेगी। सो जितनी भी क्वेरी की टर्म्स हैं, जैसे बेस्ट, कार, इंश्योरेंस, 3 टर्म है तो 3 बार चलेगी लूप। फॉर ईच टर्म हम वो लूप चलाएंगे। सो जैसे इसमें ऑटो इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वेरी, सो ऑटो के लिए हमें पता है कि फाइनल 0 भी आने वाला है, क्योंकि वो क्वेरी का पार्ट नहीं है। सो जितनी क्वेरी की टर्म है सब के लिए लूप चलाएंगे और सब के लिए ये वैल्यू निकालेंगे। सो फॉर ईच टर्म ऑफ क्वेरी हमने लूप चलाई, हमने उसका वेट निकाला, डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी, टर्म उस डॉक्यूमेंट में जो उसका वेट है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और स्कोर में ऐड कर दिया। तो यानी कि अब ये 4, 5 और 6 में क्या हो रहा है, जैसे बेस्ट के लिए चलाया, इसका जो वेट था 0.34 और ये 0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्कोर में ऐड कर दिया। फिर कार के लिए चलाएंगे 0.52 और 0.52 को मल्टीप्लाई करके
जो वेट आएगा, सो दिस 0.27 विल बी एडेड। सो हर क्वेरी टर्म के लिए हमने वेट उस टर्म का डॉक्यूमेंट में और उस वेट टर्म का क्वेरी में दोनों को मल्टीप्लाई करके स्कोर में ऐड कर दिया। सो जब हम करेंगे तो फाइनली हमारे पास उसका स्कोर आ जाएगा। और ये हम हर डॉक्यूमेंट के लिए करेंगे, वी डू इट फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। सो जितनी भी क्वेरीज हैं, फॉर ईच क्वेरी वी विल डू इट फॉर ईच डॉक्यूमेंट। सो पहले डॉक्यूमेंट से क्वेरी का आ जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से आ जाएगा, तीसरे से आ जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट से करेंगे। वी डू इट फॉर द ईच डॉक्यूमेंट एंड फाइनली क्वेरी जिस डॉक्यूमेंट के क्लोजर होगी उसकी रैंकिंग में बढ़ जाएगी। सो क्वेरी के लिए हम हर डॉक्यूमेंट से ये चलाएंगे एंड वो जिसकी क्लोजर होगी, क्वेरी इज क्लोजर टू D1, जिस सबकी वैल्यू आ जाएगी एंड जिसके क्लोजर होगी, सो दैट इज आवर फाइनल वैल्यू। सो वी आर डूइंग इट फॉर स्कोर्स, पहले डॉक्यूमेंट के लिए, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, यानी कि इसको हम कॉल करते जाएंगे। और ये वाला जो स्टेप है, जो नॉर्मलाइज करना है डॉक्यूमेंट को, ये पहले भी करके रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे लिखना है, दैट यू कैन डू इट। या 8वां 9वां स्टेप आप एडिशनल भी करके रख सकते हो, इस एल्गोरिथम से निकाल भी सकते हो। यू कैन अज्यूम कि हर डॉक्यूमेंट हमने पहले नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है। सो आपका मेन एल्गोरिथम क्या है कि हर क्वेरी की टर्म को उसके वेट को डॉक्यूमेंट के वेट से दोनों को मल्टीप्लाई करके स्कोर में ऐड करना है। सो दैट इज योर मेन थिंग। एंड स्कोर में पहले डॉक्यूमेंट का पहले में आ जाएगा, दूसरे का दूसरे में। तो स्कोर 1 रिप्रेजेंट कि क्वेरी और डॉक्यूमेंट D1 की स्कोर क्या है, स्कोर 2 रिप्रेजेंट क्वेरी और डॉक्यूमेंट D2 की स्कोर क्या है। सो इन दिस वे यू विल गेट आफ्टर दिस एल्गोरिथम क्वेरी की हर डॉक्यूमेंट के साथ स्कोर, और फिर सॉर्ट करके उनको आप रिटर्न कर सकते हो जो टॉप के डॉक्यूमेंट्स, सो दैट यू कैन रिटर्न इट। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? विपाशा, निखिल, सिमरन, हरकिरण? कोई डाउट हो इस एल्गोरिथम में? यस सर, नो डाउट सर। सो ये एल्गोरिथम को ही हमने कई बार मॉडिफाई करना है आगे के लेक्चर्स में, तो अभी एल्गोरिथम आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जैसे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वी कीप ऑन मॉडिफाइंग दिस। अभी इसमें क्या है कि अभी तो मैंने जो पीछे स्लाइड पे किया था उसी का ही एल्गोरिथम पार्ट है कि जस्ट सिंपल कर लिए। एंड आई जस्ट सेड कि 8 एंड 9 तो आप अलग से भी डॉक्यूमेंट को नॉर्मलाइज कर सकते हो, दैट इज वन पार्ट दैट यू कैन डू सेपरेटली, पैरेलली कहीं पर करके रख सकते हो। ठीक है, अब हमने जो किया अभी तक टर्म फ्रीक्वेंसी, हमने ये फार्मूला किया बस, ठीक है, जो रेड रेड दिख रहा है। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको ये फार्मूला करवाया, और कोसाइन सिमिलैरिटी जब मैंने आपको करवाया तो आई टोल्ड कि भी नॉर्मलाइज करके नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला करवाया कि कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है और नॉर्मलाइजेशन हमने ऐसे करनी है। सो क्वेरी के लिए भी और डॉक्यूमेंट के लिए भी आई टोल्ड यू द सेम थिंग। बट एक्चुअल अगर आप लिटरेचर देखोगे टर्म फ्रीक्वेंसी निकालने के, आप लिटरेचर में देखोगे कई तरीके हैं, जैसे दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू फाइंड द टर्म फ्रीक्वेंसी का फाइनल वेट है। ऑब्वियसली टर्म फ्रीक्वेंसी तो कितनी बार टर्म आ रही है, बट फाइनल वेट जो है कई तरीके से निकाला जाता है। कई रिसर्चर ने ये प्रपोज किया हुआ है, दे यूज इट। कईयों ने बोलियन नहीं रखा हुआ है और कईयों ने ऐसा लॉग एवरेज भी रखा हुआ है। ये जो मैंने आपको ये 4 दिखाए हैं, इसके अलावा भी कई होते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी निकालने के, अलग अलग रिसर्चर के अपना अपना वे है। ऐसे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का भी किसी ने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यूज नहीं की, सिंपल 1 नहीं रखा है, किसी ने जैसे जो मैंने आपको करवाया था वैसे रखा है, किसी ने मैक्सिमम रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड देयर आर अदर फार्मूलाज एज वेल। ऐसी नॉर्मलाइजेशन के भी कई और तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाते हैं, कई जैसे मैंने बताया था जैसे ये नॉर्मलाइजेशन लगाई जाती है, कई जगह पे पिवटेड यूनिक एक वैल्यू से किया जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने में टाइम भी लगता है, दैट्स व्हाई एक यूनिक यू ले लेते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, और कई बार बाइट साइज से भी डिवाइड करते हैं। सो देयर आर मेनी वेज, कई बार बाइट कैरेक्टर लेंथ लेके उससे भी डिवाइड करते हैं। अब यानी कि अगर आप रिसर्च में देखोगे यू विल फाइंड कि देयर आर सो मेनी वेज टू डू दिस, क्वेरी के लिए भी और डॉक्यूमेंट के लिए भी। और जो रिसर्चर्स हैं दे डू नॉट यूज सिंगल वे। सपोज अगर मैं क्वेरी के लिए एक तरीका यूज कर रहा हूं,
इसमें मैंने L लिया, इसमें T लिया, इसमें C लिया, तो आई विल राइट LTC। और डॉक्यूमेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं A, T एंड U, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मैं एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं, जब मैंने बताया था कि मैं आपको बताता हूं। आई एम गोइंग बैक टू 2-3 स्लाइड्स बैक। ये देखो, ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें क्या है, जब भी हम TF IDF या जब भी हम क्वेरी को साइन सिमिलरिटी करते हैं, तो ज्यादातर रिसर्चर ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि क्वेरी के लिए क्या यूज हुआ है, LNC, और डॉक्यूमेंट के लिए LTC। सो LNC एंड LTC, आई एम गोइंग बैक टू, अब मैं फर्दर उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ, LNC एंड LTC। सो LNC एंड LTC क्या आ जाएगा, LNC एंड LTC। सो क्वेरी के लिए क्या यूज हुआ है, लॉगरिथमिक, एंड फिर उसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, एंड क्वेरी के लिए काफी लोग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करते क्वेरी के लिए, एंड सी के लिए नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन। डॉक्यूमेंट के लिए क्या यूज हुआ है, एल लॉगरिथमिक टर्म फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड टी नॉर्मल ये टी IDF, एंड सी कोसाइन सिमिलरिटी। So this is the nomenclature or abbreviation that you can see that is used. तो अब आपने याद क्या रखना है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि ये TF IDF के वेरिएंट्स जो हैं, इनको याद क्या रखना है। आप 3-4 वेरिएंट आपने याद रखने हैं, ये तो हमने क्लास में किया ही है। Now there is a natural question that ये वेरिएंट लोगों ने क्यों रखे, and you can come out with your own variant as well. तो आपका अपना वेरिएंट भी हो सकता है। ठीक है, सपोज आप रिसर्च करने शुरू कर देते हो इस फील्ड में, एंड यू आर नॉट, आपको ये इनमें से लग रहा है कि कैन आई हैव वन मोर वेरिएंट, तो आप अपना वेरिएंट बनाते हो। सपोज हियर 1 आपने रखा है टू वाइड द लोब, और अंदर भी आप 1 + TF 1 + TF TD आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो क्या ये वर्क करेगा, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपने कुछ नया बना दिया, विल इट वर्क और नॉट वर्क, वो आपको प्रूव करना पड़ता है कि यूजिंग ए डॉक्यूमेंट कि हाँ इट वर्क्स करता है। जब भी आप चेंजेस करोगे, रिसर्च कम्युनिटी विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दैट चेंज। क्या कोई कंप्यूटेशन इजी हो गया है, या फिर कुछ आउटकम बेटर हो गई है, तो यू हैव टू प्रूव समथिंग। अब आपको जो प्रूव करना है कि जो आपने चेंजेस प्रपोज किए हैं, टू प्रूव, अब वो इतने जो भी आपने प्रपोज किया है, लेट्स से आपको साइन सिमिलरिटी के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आप कह रहे हो कि मुझे स्क्वायर रूट नहीं लेना, आई वांट सिंपल W1 स्क्वायर और W2 स्क्वायर, आई डोंट वांट टू टेक स्क्वायर रूट। जहां आपने कुछ और सोचा कि मैंने क्यूब लूंगा और सबका मैं क्यूब लेके क्यूब रूट ले रहा हूँ, कुछ भी नया सोच लिया आपने। अब जहाँ तो जो भी आपने सोचा, इट वर्क्स फॉर एवरी डोमेन, हर चीज के लिए काम करता है, इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग। सो आपको कई जगह पे प्रूव करना पड़ेगा, और इट वर्क्स फॉर ए पर्टिकुलर कलेक्शन। सपोज आप कहोगे कि इट वर्क्स इन मेरे पंजाबी के डॉक्यूमेंट में काम करता है, नॉट इन इंग्लिश, या आप कहोगे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में काम करता है, नॉट इन अदर डॉक्यूमेंट्स। सो वट एवर यू विल डू, सो वट एवर चेंजेस दैट एज ए रिसर्चर यू सजेस्ट, जो भी आप चेंजेस बताओगे टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में या नॉर्मलाइजेशन करने में, यू हैव टू प्रूव दैट इट वर्क्स। वर्क्स का मतलब है या तो कंप्यूटेशनली बेटर होना चाहिए, या फिर उससे जो कोसाइन सिमिलरिटी निकाल रहे हैं या कोई आउटकम निकाल रहे हैं उसमें बेटर होना चाहिए। किसी तरीके से वो पुराने जो भी लोगों ने डिफाइन किए हैं, अगर उससे वो बेटर है, और बेटर जरूरी नहीं है कि हर जगह बेटर हो, सिंपल एक कलेक्शन में भी बेटर है अगर, स्टिल योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। स्टिल आपने जो भी प्रपोज किया है दैट इज एक्सेप्टेड, कि आपने नई चीज प्रपोज की है। सो यू हैव प्रपोज न्यू वे टू टर्म फ्रीक्वेंसी, या न्यू वे ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, या न्यू वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो जो भी आपने प्रपोज किया, नाउ इट वर्क्स वेल। सो चाहे सभी डॉक्यूमेंट के लिए काम अच्छा करता है हमेशा, या किसी कलेक्शन के लिए। So in this way, you can also come up with your research of term frequency and the document frequency. And this is the researcher who are working in this domain, so they keep on doing. So ऐसे more than 500 term frequency के formulas हैं. Document frequency के भी there are so many formulas.
और नॉर्मलाइजेशन के भी कई फार्मूलेज हैं, बट पॉपुलर कौन से होते हैं जिनका मैथमेटिकल बेस होता है, जैसे दिस इज L2 नॉर्म, ये तो एक मैथमेटिकल फार्मूला है। बट अगर मैं कुछ भी ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि क्यूब ले लो, कभी कुछ ले लो, सो उसका मैथमेटिकल बेस नहीं है। जैसे अभी मैं कुछ भी नॉर्मलाइजेशन में मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर तो नाउन है तब तो सिंपल उसका लेना है, अगर वर्ब है तो उसका स्क्वायर कर देना है, इफ W2 इज वर्ब देन स्क्वायर कर देना है, अगर प्रेपोजिशन है तब उसका क्यूब कर देना है, और फाइनली बाहर क्यूब रूट ले लेना है। ऐसे मैंने कुछ भी कह दिया नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ जाएगी। सो वेदर इट वर्क्स और नॉट वर्क वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। सो इसलिए रिसर्च में इट इज नॉट कि भी कुछ भी कह दो आप, टर्म फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी कुछ भी कह दो, आइदर यू हैव मैथमेटिकल बेस टू प्रूव द थिंग्स और you do it by using some experiments to say that कि computational complexity कम हो जाती है या ये कम हो जाता है। So in this way you can do it। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. So अब हमने रैंकिंग के लिए अगर हम आप शुरू से हम देखें हमने क्या क्या किया था, जकार्ड कोएफिशिएंट किया, फिर हमने टर्म फ्रीक्वेंसी देखा अलग से, फिर हमने देखा कि टीएफ अलग से काम नहीं आएगा, टीएफ और आईडीएफ को कंबाइन करके स्कोर करना है। इसको भी हमने देखा कि भी नॉर्मलाइजेशन जब वेक्टर बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली वी डिड द कोसाइन सिमिलरिटी एंड नाउ वी कैन डू द रैंकिंग। सो नाउ जो भी एल्गोरिथम अभी हमने किया है, अब हमारा काम है उसको फास्टर बनाना थोड़ा सा। वी वुड लाइक टू डू मोर टू मेक इट फास्टर। सो आप जितनी भी लाइब्रेरीज देखोगे सो दैट वी कैन गो टू दैट लेवल कि लाइब्रेरीज में वो कैसे कैलकुलेट होता है। आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल एल्गोरिथम, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू इंप्रूव सर्टेन थिंग्स इन दैट। सो एक एक करके उसको फास्ट बनाते जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो ओके देन वी विल स्टॉप टुडे हियर। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप एल्गोरिथम ये साथ साथ करते रहे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एल्गोरिथम ओनली एंड वी विल ट्राई टू मॉडिफाई दिस एल्गोरिथम। ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जब भी आप करोगे ये हर जगह यूज होंगे। दिस आपको पता है जब भी आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हो, इफ यू आर इन इंडस्ट्री और इवन इफ यू आर इन एकेडमिक्स, कहीं पर भी हो आप, चाहे एनएलपी डोमेन में काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अगर आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पढ़ा तो आपको ये फंडामेंटल्स टीएफ क्या होता है, आईडीएफ क्या होता है, व्हाई वी टेक लॉग, व्हाई वी हम डिवाइड क्यों करते हैं, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। कोसाइन सिमिलरिटी इज वेरी कॉमन टर्म जो हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, so we will start in the next lecture from the same algorithm and we will try to make it faster।